وزارت اطلاعات و نشریات کے زیر اہتمام دا بیٹل آف ٹروتھ کے اجرا کی تقریب اس وقت جاری ہے۔ اب میں دعوت دیتا ہوں آج کی تقریب کے پہلے مقرر لیفٹیننٹ جنرل عامر صاحب کو کہ وہ قومی رد عمل اور اس کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالیں۔ آپ سب کی بھرپور تالیوں میں لیفٹیننٹ جنرل عامر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Honorable Ministers, ladies and gentlemen, السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو یہ آج ایک بہت ہی اسپیشل اوکیزن ہے جس کے لیے ہم سارے یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو کامیابی عطا فرمائی تقریباً 1 سال پہلے، اس کو ہم یاد کرنے کے لیے یہاں پہ اکٹھے ہیں۔ اور یہ موقع اس لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت ایک کتاب لانچ کی گئی، آپ نے اس کا ریویو بھی دیکھا، اور مجھے یہ کتاب تقریباً 2-3 دن پہلے ملی، تو میں نے اس کو 2 دفعہ I've gone through this book۔ میرا یہ خیال ہے کہ بہت ہی اچھی کاوش ہے، اور جنہوں نے بھی اس کتاب کو مرتب کیا، منسٹری آف انفارمیشن براڈ کاسٹنگ، ISPR، اور وہ تمام لوگ جنہوں نے اس میں اپنا حصہ ڈالا، وہ سارے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور میں یہ بھی کہتا چلوں کہ this book should be placed in the libraries of the schools, colleges and the universities all across Pakistan۔ اور اس کا ڈیجیٹل ورژن should also come out very soon، تاکہ ہر ایک کی، پاکستانی کی جو یہاں پہ ہے یا پاکستان سے باہر ہے، اور باقی لوگ بھی جو پاکستان کے معاملات کے ساتھ ساؤتھ ایشیا کے معاملات میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، وہ بھی دیکھ سکیں what is the truth۔ This book fundamentally is a journey کہ پاکستان کی انسیپشن، پاکستان کے بارے میں سوچا کیوں گیا، کیا ہوا، کیا وہ محرکات تھے کہ ایونچولی سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں آزاد ریاست چاہیے جس میں وہ اپنی مرضی سے اپنے طرز زندگی کے مطابق، اپنے اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ اس کا جو پہلا بڑا امپورٹنٹ چیز تھی وہ تھی 1857 کی جنگ آزادی، جس کو انگریز بغاوت کہتا ہے، بٹ جنگ آزادی آف 1857 میں جو جنگ لڑی گئی، اس کے بعد ایک برٹش انڈیا میں انگریز نے اور ہندو نے مسلمان کو بالکل سائیڈ لائن کر دیا۔ بڑی کوششیں کی مسلمانوں نے، علی گڑھ یونیورسٹی بنی اور چیزیں بنی کہ مسلمان جو ہیں دوبارہ علم حاصل کریں، لائم لائٹ میں آئیں، لیکن مسلمز ور سائیڈ لائن۔ دوسرا بہت بڑا ایک ایونٹ تھا 1905 میں، بنگال کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا، ایک ایسٹ بنگال، ایک ویسٹ بنگال۔ ایسٹ بنگال جہاں پہ مسلمانوں کی آبادی زیادہ، اور ویسٹ بنگال جہاں پہ ہندوؤں کی آبادی زیادہ۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اس پارٹیشن کو پھر ختم کرنے کی کوشش کی گئی، اور 1905 میں یہ واقعہ پیش آتا ہے، اور 1906 میں پہلی دفعہ مسلم لیگ، جو وہ جماعت تھی جس نے پاکستان بنانے کی موومنٹ لیڈ کی، قائد اعظم اس جماعت کو لیڈ کرتے تھے، ایونچولی پہلے وہ اس میں نہیں تھے، بعد میں اس میں آئے، اور 1906 میں اس کی بنیاد رکھی گئی۔ بہرحال یہ سفر لمبا ہے، تو علامہ اقبال 1930 he made the first assertion، پہلی دفعہ انہوں نے کھل کے بات کی کہ مسلمانوں کو ایک آزاد ریاست چاہیے۔ اور پھر یہ سفر شروع ہوا، اور 1947 میں by the grace of Almighty this journey was completed on the 14th of August 1947 and the great state of Islamic Republic of Pakistan came into being۔ لیکن اس کے ساتھ ہی بہت سارے معاملات جڑ گئے، تقسیم ہوئی۔ میرا نہیں خیال ماڈرن ہسٹری میں ایٹ لیسٹ پچھلے 100 سال میں کوئی اتنی بڑی مائیگریشن، اور موسٹ آف اٹ واز اے فورسڈ مائیگریشن ایک ملک سے دوسرے ملک میں ہوئی ہو، اور اس کے ساتھ جو پھر ظلم اور زیادتیاں ہوئیں اس کی بھی مثال نہیں ملتی۔ لوگ نارملی مثال دیتے ہیں، روانڈا میں پچھلے 20-25 سال پہلے ایک مائیگریشن ہوئی تھی جس میں کہتے ہیں کہ 10 لاکھ آدمی جو تھے وہ مارے گئے، لیکن ہسٹورینز کہتے ہیں کہ جو 1947 میں جو واقعات پیش آئے اگست، سپٹمبر، اکتوبر میں، اس میں شاید 1 ملین سے 2 ملین، 10 سے 20 لاکھ لوگ جو تھے انہوں نے اپنی جانیں، ان کی جانیں گئیں، اور اس میں زیادہ تر وہ لوگ تھے جو
भारत से पाकिस्तान में आए। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये फर्स्ट हैंड वाकयात अपने वालिदैन से, अपने बुजुर्गों से सुने होंगे जो उस वक्त पाकिस्तान में आए। पाकिस्तान का स्टार्ट ये था कि बहुत सारे रिफ्यूजीज लुटे पुटे जख्मी बुरी हालत में पाकिस्तान में आए। पाकिस्तान को हिंदुस्तान ने कुछ रिसोर्सेज देने थे, रिसोर्सेज की डिवीजन थी, वो डिवीजन नहीं हुई, उन्होंने वो रिसोर्सेज नहीं दिए। और ख्याल ये था, बहुत सारे इंडियन उस वक्त के जो लीडर थे हिंदुस्तान के, उनका ख्याल ये था कि चंद हफ्ते नहीं तो चंद महीने में ये रियासत खुद ब खुद गिर जाएगी अपने प्रेशर से। ना इनके पास कोई रिसोर्सेज हैं, पाकिस्तान में ना कोई इंडस्ट्री थी, ना इनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे, तो ये रियासत चल नहीं सकेगी, ये गिर जाएगी। ये रियासत अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ चली, एक मजबूत रियासत के तौर पे आज खड़ी है। उसके बाद तमाम प्रिंसिपल्स ऑफ पार्टीशन को वायलेट करते हुए कश्मीर डोगरा महाराजा ने उस वक्त एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया। हम सारे इसको मान जाते हैं कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया। कुछ किताबें हैं, अगर आप उनको पढ़ेंगे तो पता ये चलेगा कि जिस दिन ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्लेम करते हैं भारतीय के साइन हुआ था 26 या 27, उस दिन महाराजा वॉज ट्रेवलिंग फ्रॉम श्रीनगर बाय रोड टू जम्मू। तो जो आदमी ट्रेवल कर रहा होता है बाय रोड, वो दिल्ली में जाके साइन नहीं कर सकता। एंड लेस्टर लैम इज नॉट अ पाकिस्तानी, लेस्टर लैम, ही रोट दिस इन हिज बुक। कश्मीर का मामला उस वक्त से पाकिस्तान के साथ जुड़ा। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक्त फैसला किया, इट वॉज हिज कमिटमेंट टू द पीपल ऑफ कश्मीर, एंड ये फैसला उन्होंने किया कि हम कश्मीर में अब अपनी फोर्सेस लेके कन्वेंशनल और जो हमारे ट्राइब्समैन थे उनके साथ आप जाएंगे। तो ये कमिटमेंट कायद-ए-आज़म ने दी थी, और आज भी जो आज़ाद जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के पास है, ये उस वक्त उस कमजोरी के, आज तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजबूत इस्लामी रियासत है, उस वक्त कमजोरी के आलम में भी उस बड़े लीडर ने यह फैसला किया। और पाकिस्तान के पास जो आज आज़ाद जम्मू कश्मीर है, इसमें बहुत सारे लोगों की एफर्ट है, आज़ाद कश्मीर के लोगों की, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की, बट यह फैसला कायद-ए-आज़म ने किया था। डिस्प्यूट आज भी पाकिस्तान इंडिया के दरमियान में मौजूद है, लेकिन आज़ाद जम्मू कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान उस एक फैसले की वजह से आज आज़ाद है, भारतीय तसल्लुत से बाहर है। एक दो बातें मैं जरूर करूंगा। व्हाट हैज हैपेंड टू इंडिया, इंडिया में क्या हुआ है। एक जमात है वहां पे, आरएसएस उसका नाम है, 1925 में ये सामने नजर आना शुरू हुई, जो कि हिंदू सुप्रीमेसी पे बिलीव करती थी, और वो चलते चलते इंडिया की बॉडी पॉलिटिक पे हावी हो गई। पहले वो हावी नहीं थी, वो आहिस्ता आहिस्ता इंडिया की अंदर शायद मौजूद थी, बहुत डीप इनसाइड उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था, लेकिन अब वो इंडिया की बॉडी पॉलिटिक पे हावी हो गई ग्रेजुअली। और पिछले 10-15 साल में, 12 साल में उनका पूरा तसल्लुत है इंडिया की बॉडी पॉलिटिक पे, इंडिया की गवर्नेंस पे, इंडिया की इंफॉर्मेशन स्पेस पे, और इंडिया की जुडिशियल स्पेस पे। दे हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर दैट, एंड दैट इज हिंदू सुप्रीमेसिस्ट पार्टी, बिलीविंग इन हिंदुत्व, बिलीविंग इन अखंड भारत। और उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में एक नक्शा लगाया अखंड भारत का, जिसमें सारा सब कॉन्टिनेंट श्रीलंका से लेकर अफगानिस्तान तक शामिल है। और ये कोई ख्वाबों ख्यालों की बातें नहीं है जी, हम उनके साथ उठे बैठे हैं, उनके साथ इंटरेक्ट भी किया है, ऑनरेबल मिनिस्टर्स यहां पे मौजूद हैं। पाकिस्तान ने कभी आज तक, पाकिस्तान हैज लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड, पाकिस्तान ऑलवेज वांटेड पीस। बहुत सारी कोशिशें पीस के लिए हुई हैं, सारी कोशिशों को किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी जगह पे स्कटल किया गया। चूंकि इसमें बहुत बच्चे भी बैठे हैं हमारे, एक बात मैं कहता चलूं, दिस वाज बिफोर मार्का-ए-हक, हमारी अपने कुछ भारतीय काउंटर पार्ट्स के साथ मुलाकात हुई। मुलाकात की तफसील तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन एक मैं आपको वर्बैटम बात बताना चाहता हूं। राम महादेव उनका नाम है, इज जनरल सेक्रेटरी ऑफ द बीजेपी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी। सो इन अ मीटिंग ही सेड दिस ओपनली, उन्होंने कहा जी अंग्रेज ने सब कॉन्टिनेंट से जाते हुए 3 लाइनें छोड़ी। एक लाइन थी मैकमोहन लाइन जो इंडिया चाइना के दरमियान में, एक लाइन थी ड्यूरेंट लाइन जो आज पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान में है, विच वी कंसिडर एज इंटरनेशनल बॉर्डर। एंड यू नो व्हाट ही सेड, व्हिच इज मोस्ट प्रोफाउंड, जो बहुत ज्यादा जरूरी बात है सबके समझने के लिए। उन्होंने कहा कि एक लाइन रेड क्लिफ लाइन थी जो कि असल प्रॉब्लम। रेड क्लिफ लाइन इंटरनेशनल बॉर्डर है पाकिस्तान इंडिया के दरमियान में। ये मैं आज
पिछले आपको इस बीजेपी की सोच बता रहा हूं. सो दिस वेयर वी स्टैंड. दूसरा ढोंग रचाया गया कि जी पाकिस्तान टेररिस्ट सपोर्टिंग स्टेट है, कश्मीर की मूवमेंट को टेररिज्म के साथ इक्वेट किया गया. ऐसे नहीं है. कश्मीर इज अ फ्रीडम मूवमेंट. It stands as a freedom movement. Pakistan has supported it politically, diplomatically, and Pakistan's political and military leadership is committed to it because ye promise was given by our forefathers, the father of the nation. You can't run away from that promise. Indians ने at the same time एक massive पाकिस्तान के अंदर हमेशा किया. ये आप लोग I'm sure जो बुजुर्ग हजरात इधर बैठे हैं उनको तो पता है. पाकिस्तान के अंदर इंटरफेरेंस इज नॉट जस्ट 1971, उसका थोड़ा सा ग्लिम्स आपको ने दिखाया. दिस स्टार्टेड अ लॉन्ग टाइम बैक. इसमें 2-3 मूवमेंट्स थी जो चलती रही पाकिस्तान में, खासतौर पे बलूचिस्तान में और कुछ केपी में, जिनमें एक पश्तूनिस्तान की मूवमेंट थी जिसका हेडक्वार्टर एक गवर्नमेंट उन्होंने बनाई जलालाबाद में. बलूचिस्तान में एक इंसर्जेंसी चली 70s में, वो काबुल में पाई जाती थी. गॉड ब्लेस हिज सोल एक दोस्त हुआ करते थे हमारे. आज मुझे मौका मिल गया, मैं थोड़ी सी बात करूंगा 3-4 मिनट और फिर देन आई विल फिनिश. एक हमारे बुजुर्ग हुआ करते थे मीर हजार खान बेजरानी. इधर मेरे बलोच दोस्त भी कुछ बैठे हैं. दे वुड नो हिम. इज नो मोर. एक किताब भी लिखी. आई मेट हिम पर्सनली. उन्होंने मुझे एक तस्वीर दिखाई. एज दे से दिस बुक इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन. अ पिक्चर स्पीक्स 1,000 वर्ड्स. जो पिक्चर उन्होंने मुझे दिखाई that spoke 100,000 words. This is a picture of Mir Hazar Khan himself because he was a militant commander of that movement. बैठे हैं हमारे बलोच दोस्त, उनको पता है. In the 70s. God bless his soul is no more. बाद में उनकी दोस्ती होगी पाकिस्तान के साथ. और भी लोग थे वहां पे. तो एक पिक्चर थी काबुल में जहां पे उस जमाने में अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी होती थी, उसका नाम था खाद. उनका चीफ बैठा हुआ है. रॉ जो आज भी है इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी, उसका स्टेशन चीफ बैठा हुआ है. और केजीबी जो उस जमाने में सोवियत यूनियन की इंटेलिजेंस एजेंसी थी, वो वहां पे बैठे हुए उनके साथ. बाकी उन्होंने मुझे स्टोरी बताई. इससे इस पिक्चर से आपको सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए. So the point I'm to make is that this effort of the Indians is going on for a long time and it is still going on in various forms and shapes. आपने तो कुलभूषण यादव का यहाँ पे जिक्र किया किताब में. मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ क्योंकि अब मैं अपने बहन भाइयों के दरमियान में बैठा हूँ. आई हैव टू से दोस थिंग्स सो दैट यू कैरी इट इन यू एंड यू शुड नो इट्स अ फैक्ट. एक इंडियन एम्बेसी में आदमी हुआ करता था पाकिस्तान में, स्मार्ट हैंडसम गाय. दीपक कौल उसका नाम था. 2006-7 की बात है. ही वाज आई थिंक देयर कमर्शियल अटैचे व्हाटएवर. तो वो यहाँ से तशरीफ लेके जा रहे थे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की इजाजत के साथ दिल्ली बाय रोड. रास्ते में उन्होंने एक मीटिंग तय की हुई थी बलोच मिलिटेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, और वो $4 लाख देते हुए रंगे हाथों पकड़े गए थे. चूंकि वो डिप्लोमेट थे, ही हैड टू बी रिटर्न. तो ये स्टोरी आज की नहीं, ये स्टोरी बड़ी पुरानी चल रही है. दिस इज 2007. एंड देन व्हाट इज गोइंग ऑन वो चल रहा मामला. नाउ कम टू मार्का हक बनारुल महसूस. इट वॉज नॉट, ये जो हम समझते हैं को ट्रिगर हो गए इंडियंस, ये एक पहलगाम में इंसिडेंट हुआ वो ट्रिगर हो गए. नो, इट वॉज अ पॉलिसी ड्रिवन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन. इट वॉज एन इंडियन पॉलिसी बाय विच दे वांटेड टू गो बाय इट. उनका एक एजेंडा था कि हम पाकिस्तान को आइसोलेट करेंगे. पिछले 8-10 साल में एजेंडा उनका चल रहा था कि हर लिहाज डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली, वाइल प्रॉक्सीज के साथ इसको कमजोर करेंगे एंड टेररिज्म का एक इल्जाम पाकिस्तान पे हम लगाते रहेंगे. सो दे हैड टू कीप दैट नैरेटिव गोइंग. उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स और उनकी एक्सटर्नल पॉलिटिक्स में ये बिल्कुल फिट होता था टू कंडक्ट सच अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन. सो इन माय ओपिनियन, इन माय असेसमेंट, इट इज अ पॉलिसी ड्रिवन इंसिडेंट व्हिच द इंडियंस डिड. वो पहले भी ये काम करते रहे. छत्तीसगढ़ से शुरू कर लें, अगर आपने रिसेंट मेमोरी में जाना है, 2000 का ये वाकया है. 35 सिखों को उन्होंने सदर्न कश्मीर में मारा था, बाद में पकड़े गए. समझौता एक्सप्रेस, मिनिस्टर डिफेंस बैठे हैं, मेरे से बेहतर जानते हैं, कर्नल पुरोहित एक्सेप्ट करता है और आज भी वो इंडिया में खुला फिर रहा है. एंड सो ऑन सो फोर्थ. सो इट्स अ पॉलिसी driven incident. It was a state policy. The policy failed.
because the response of the international community, the truth cannot be hidden. सच्चाई में और झूठ में फर्क इतना है क्योंकि आजकल we live in the post-truth world, social media, ये है वो है. Truth will always stand its ground. This was the difference between India and Pakistan in 2025. The lies and the truth. Failure of policy and success of policy. और यहां से वो चीज शुरू होती है. उसके बाद पॉलिटिको डिप्लोमेटिक फ्रंट एब्सोल्युटली, चूंकि ट्रूथ पे बेस्ड था, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, द अदर कंपोनेंट्स ऑफ द स्टेट, the entire nation, they all stood together, and your narrative based on truth. और बड़ी साफ बात कि यार ये है, आप न्यूट्रल इंक्वायरी कराएं, we are ready to cooperate. They ran out. They didn't want it because उनकी पॉलिसी में फिट नहीं हो रहा था. It was a failing policy. So पाकिस्तान ने उनको डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल फ्रंट पे डिफीट किया. मिलिट्री, they went ahead, and military, it was a disaster. Starting from 6th, 7th night to 10th morning, it was a disaster for India. I think, मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है, यहाँ तो उनकी मिलिट्री के ऊपर उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप ने वो वजन डाल दिया था जो वो उठा नहीं सकते थे, या they have become delusional. So militarily they were defeated fair and square. Information campaign, वो इतना स्टूपिड प्रोपेगेंडा था कि उससे ना सिर्फ जो वो कह रहे थे, उन्होंने अपना स्टेचर भी डाउन कर लिया. पाकिस्तान बड़ा कैलकुलेटेड, साफ बात, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, डिफेंस मिनिस्ट्री, ISPR, क्लियर बात, आर मीडिया एब्सोल्युटली रिस्पॉन्सिबल, जो ठीक बात है वो, नो ह्यूब्रिस, नो नॉनसेंस, एंड पाकिस्तान स्टूड टॉल. Congratulations to the entire Pakistani nation. आखिरी बात, it is not over yet. We have to be prepared. We cannot take chances. We cannot lower our guards. पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद. अब मैं दावा देता हूं जनाब ज़हरैन खान मक्सी साहब को कि वो आएं और अपने ख्यालात का इजहार करें. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ऑनरेबल मिनिस्टर्स, मोअज़्ज़िज़ साथियों, आप तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने कीमती वक्त निकाल के इस मार्का हक बुक लॉन्च सेरेमनी, पिक्टोरियल बुक लॉन्च सेरेमनी में शिरकत की और इज्जत बख्शी. उसके साथ ही साथ वजारत इत्तलात, ब्रॉडकास्टिंग और ISPR को दिली मुबारकबाद पेश करता हूं, क्योंकि इस किताब को लॉन्च करना मैं समझता हूं एक ऐसे काविश थी कि मैं समझता हूं कि लोगों को इकट्ठा किया, जो याद को महफूज रखा, कुर्बानियों को खैराज तहसीन पेश किया और हमारी कौमी अज़म को मजबूत करता गया. अगर आप देखा जाए तो मार्का हक, दिस होल ऑपरेशन वॉज बेस्ड ऑन ट्रूथ, हक और सच पे. वक्त साबित करेगा कि हम साबित कदम और हौसला की दौलत से माला माल हैं. थैंक यू. अब मैं दावा देता हूं कि मोहतरमा नफीसा शाह तशरीफ लाएं और अपने कीमती ख्यालात का इजहार फरमाएं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इस धरती के दिलेर कौम के भाइयों और बहनों, मार्का हक के पासदारों, अस्सलाम अलैकुम. पाकिस्तान अपनी 8 दहाइयों की तारीख में कभी भी आलमी तारीख के फैसला कुन राहदारियों से लाताल्लुक नहीं रहा. हमने हालिया तारीख में दुनिया के किसी न किसी ग्रैंड स्टेज पर अपना किरदार अदा किया है, जिसकी ताज़ा मिसाल अमेरिका और ईरान में सीज फायर का क़याम, जो एक बहुत
बड़ा कारनामा था। जब पहलगाम फॉल्स फ्लैग की आड़ में सिविलियन आबादी को निशाना बनाया गया तो आलमी तस्वुर यही था कि भारत हर पहलू से मुआशी भी और अस्करी भी पाकिस्तान से ज़्यादा बरतर है, मगर हमने इस मफरूज़े को तारीख के कटहरे में गलत साबित कर दिया। हमने नाम नेहाद बड़ी मईशत को घुटनों के बल खड़ा किया और इसकी फ़िज़ाई बरतरी को भी और गुरूर को भी ज़मीन बोस कर दिया। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई मिलियन डॉलर मालियत के रफाल तैयारे राख और मलबे में बदल गए और हम वहीं नहीं रुके। हिकमत, हिम्मत और पुरअमन रवैये के साथ हमने फौजी अहदाफ पर कदम बढ़ाए। ये सिर्फ अपने दिफा के लिए की गई कोशिश थी। आखिरकार फौजी ताकत और समझदार सिफारत की भी बेहतरीन मिलाप से जंग बंद करना मुमकिन हुआ। पाकिस्तान ने फतह हासिल की, न सिर्फ मैदान जंग में बल्कि आलमी ज़मीर की अदालत में भी। एक मजबूत फौज और एक मजबूत कौम, यही हमारी मंजिल है, यही मार्का हक की हकीकी मफहूम है। शुहदा जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, आपकी भरपूर तालियों में मैं दावत देना चाहता हूँ मोहतरमा पलवशा खान को। मेहमानान गिरामी, ख़वातीन व हज़रात, मोहतरम हुज़राए कराम, अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही फ़ख्र का बाइस है और वो इसलिए कि आज के दिन एक साल पहले भारतीय रियासत के झूठे बयानिए को भी पाश करने का और उसकी तबाह होने का दिन है। और फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब की क़यादत में और पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की क़यादत में और तमाम पाकिस्तानियों के साथ मिलकर मार्का हक ने जहां मोदी की नफ़रत की और तासुब ज़दा तकसीम की सियासत को दफन किया, वहीं मोदी के अखंड भारत के तारीखी फ्रॉड को उसको भी ज़मीन बोस कर दिया। इसका जिक्र पहले भी हुआ है और यही वो दोमालाई कहानी है जिसको बेचकर मोदी इसकी आड़ में नफरत के बीज बोता रहा है और अपनी सियासत को चमकाता रहा है। हम इस खित्ते में और दुनिया में भारत की चौधराहट को ज़मीन बोस करेंगे, तबाह बर्बाद करेंगे। मार्का हक के तमाम गाजियों और शहीदों को सलाम। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मैं अब दावत देना चाहता हूं वजीर इत्तलात और नशरियात जनाब अताउल्लाह ताहर साहब को कि वो आएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब ये जंग लड़ी जा रही थी और वो बयानिए का महाज हो, वो सफारती महाज हो, वो अस्करी महाज हो, जो अल्लाह ताला ने हमें फतह अता फरमाई, उसके पीछे इस कौम का जज्बा, कौम की लगन और अल्लाह ताला के फजल से ये अमर सबसे अहम था कि हम हक पर थे, सच पर थे और सच्चाई को शिकस्त देना नामुमकिन होता है। तो बयानिए की जंग जब हम लड़ रहे थे मीडिया के ऊपर, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, और जहां हमारी नौजवान नस्ल ने, पाकिस्तान के मीडिया ने, हमारे सोशल मीडिया ने भरपूर इस जंग में हमारा साथ दिया, तो दूसरी तरफ भारत की मकारी, भारत का झूठ और उनकी मुनाफिकत थी जिसकी एवज उनके बयानिए को पूरी दुनिया में कोई तस्लीम करने को तैयार नहीं था। और जो जिंदा कौमें होती हैं वो दुनिया में अपना मकाम गैरत के साथ, इज्जत के साथ और वकार के साथ बनाती हैं। तो जो अल्लाह ताला की मदद आई वो हक और सच पर होने की बुनियाद पे आई। मैं लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब का
تہے دل سے مشکور ہوں کہ ایک آپ کو مکمل سینرجی نظر آئی وزارت اطلاعات و نشریات اور ISPR کے درمیان. آج یہ تقریب بھی اس چیز کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ایک مکمل یونٹی آف تھاٹ اینڈ ایکشن تھا، اتحاد تھا، اتفاق تھا، جس کی بدولت بیانیے کی جنگ جیتنا ممکن ہوا. اور آج اس کتاب کے حوالے سے بھی میں اپریشیٹ بھی کرنا چاہتا ہوں اور شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف اور ان کی پوری ٹیم کا. تو میں ان اشعار کے ساتھ پاکستان کے وزیر دفاع جناب خواجہ محمد آصف صاحب کو دعوت خطاب دوں گا کہ جس سمت میں چاہے صفت سیل رواں چل، وادی یہ ہماری ہے صحرا بھی ہمارا، غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. آپ کی بھرپور تالیوں میں پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. برادرم عطا اللہ تاج صاحب، خواتین و حضرات، مہمانان گرامی، آج مارکہ حق بیٹل آف ٹروتھ نامی اس شاندار تصویری مجموعے کا افتتاح کرتے ہوئے میں انتہائی فخر اور خوشی محسوس کر رہا ہوں. خواتین و حضرات، یہ کتاب محض چند اوراق کا مجموعہ نہیں بلکہ ہماری قوم کے عزم، لازوال قربانیوں اور فولادی حوصلے کی جیتی جاگتی داستان ہے. میں وزارت اطلاعات و نشریات اور ISPR کی اس کاوش کو دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے بھارت کی پاکستان دشمنی اور پاکستان کے عزم و استقلال کی اس داستان کو تصویری اور تحریری شکل دی. تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ دنیا میں امن اور استحکام کی کاوشوں میں اہم کردار ادا کیا تاکہ خطے میں موجود تمام ممالک معاشی ترقی اور عوامی فلاح کے راہ پر گامزن رہ سکیں. میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ دنیا میں پیس مشنز جو جاتے ہیں اقوام متحدہ کے طرف سے، کئی سال پاکستان اس میں نمبر 1 رہا ہے، اور آج بھی پاکستان سب سے بڑے جو کنٹریبیوٹر ہیں پیس مشنز میں، پاکستان اس میں شامل ہے. تو یہ پاکستان کی امن پسندی کا ایک بین ثبوت ہے. بدقسمتی سے ہمیں ایک ایسے ہمسائے سے واسطہ پڑا ہے کہ جس نے آزادی سے پہلے اور نہ آزادی کے بعد پاکستان کی خود مختاری اور انفرادی وجود کو ذہنی طور پہ قبول کیا. ہندوستان کی ہندتوا سامراجی ذہنیت اس خطے کے امن اور ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. خصوصاً پچھلی ایک دہائی سے انتہا پسند ہندو ذہنیت نے جہاں ایک طرف خطے کے امن کو مسلسل داؤ پہ لگا رکھا، وہیں اس انتہا پسندی نے ہندوستان کی کثیر الجہتی شناخت کو مجروح کر دیا اور اندرونی طور پر اقلیتوں کو ذات پات اور مذہبی تفریق اور تشدد سے یرغمال بنایا ہوا ہے. 79 سال کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ تمام پاک بھارت جنگیں پاکستان پر مسلط کی گئیں. ہندوستان کی سامراجی ذہنیت سے نہ تو خطے کا کوئی ملک محفوظ ہے اور نہ اس کی اپنی عوام. 1948 سے لے کر 1999 تک جنگی محاذ پر بارہا شکست کے بعد ہندوستان نے ایک بار پھر 1971 کی طرز پر
प्रॉक्सी वार का सहारा लिया और फितनाउल खवारिज और फितनाउल हिंदुस्तान जैसी दहशतगर्द तंजीमों की सरपरस्ती की, पाकिस्तान की मगरबी सरहदों और शहरों को दहशतगर्दी का निशाना बनाया। कश्मीरियों के हक़ इरादियत के मुसलसल इनकार और अंदरूनी मजहबी तासुब के खिलाफ मुदावा करने की बजाय हिंदुस्तान इन अंदरूनी खलफशार को दबाने के लिए सरहदों पर जंग का माहौल गर्म कर देता है। पहले 2019 में पुलवामा में दहशतगर्दी का ढोंग रचाकर पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक्स की कोशिश की और चाय के कप के इवज अपने जहाज और पायलट को कुर्बान किया। इस सबकी को मिटाने के लिए राफेल जहाज ना होने का बहाना बनाया। पाक अफवाज के दंदान शिकन जवाब का कोई मुकाबला तो नहीं था, मगर कहीं भारत को ये गुमान हुआ कि पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की अफवाज के दरमियान 5th जनरेशन वारफेयर का सहारा लेते हुए तकसीम पैदा की जा सकती है और पाकिस्तान को कमजोर खुदा नखास्ता किया जा सकता है। वो नहीं जानते कि दुनिया की कोई साजिश और किसी किस्म का इंतशार अवाम और पाक फौज की अनमिट मोहब्बत के दरमियान नहीं आ सकते। अपनी अयारी और मक्कारी की कामयाबी की खुशफहमी में और फिर इस घिसे पिटे दहशतगर्दी के ड्रामा को पहलगाम में रचाया गया। बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम धरने की कोशिश की गई और जारहाना अज़ाइम का बरमला इजहार किया गया। पाकिस्तान की मुदब्बर कौमी क़यादत ने हिंदुस्तान से इन दहशतगर्दी के इल्ज़ामात का सबूत मांगा और शफाफ तहकीकात में तावन की यकीन दहानी कराई और साथ ही बरमला और वाशगाफ अल्फाज में हिंदुस्तान पे वाज़े कर दिया कि पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी के खिलाफ किसी भी अमल का भरपूर जवाब दिया जाएगा। लेकिन मक्कार दुश्मन बाज ना आया और पाकिस्तान में मसाजिद, बच्चों, औरतों और शहरियों को रात की तारीकी में निशाना बनाया। दुश्मन की मकरू जहरियत ऑपरेशन संदूर के जवाब में दुश्मन की उम्मीद के ऐन बरक्स पाकिस्तान के अवाम हर सियासी, मजहबी, लिसानी और इलाकाई तफरीक से बालातर होकर अपनी अफवाज के शाना बशाना आ खड़ी हुई और मुल्क के दफा में एक ऐसी सीसा पलाई हुई दीवार बुनियानुल मरसूस बन गई जिसने दुश्मन के जहरीले अज़ाइम खाक में मिला दिए और पाकिस्तान की आवाम ने इस वालेहाना जज्बा और मोहब्बत ने पाक फौज को वो कुव्वत बख्शी जिसने दुश्मन को रहती दुनिया तक याद रहने वाला सबक सिखाया। पाकिस्तान की बर्री, बहरी और फ़ज़ाई अफवाज ने अवाम के तावन से दुश्मन के अज़ाइम को नेस्त नाबूद कर दिया। दुश्मन के हाई टेक जहाज आसमानों से ऐसे गिरे जैसे कागजी जहाज। पाकिस्तान के फतह मिसाइल दुश्मन पर कहर बनकर टूटे और S-400 जैसे जदीद डिफेंस सिस्टम का गुरूर खाक में मिल गया। इस अजीम कामयाबी पर मैं पाकिस्तानी अवाम और अफवाज पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर खराज तहसीन पेश करता हूँ और इस मुश्तरका काविश का एतराफ़ के तौर पर हुकूमत पाकिस्तान इस किताब के जुमला हकूक पाकिस्तानी अवाम के नाम करती है। पाकिस्तान मार्का हक के बाद ज़्यादा मजबूत और मुस्तहकम होकर उभरा है। आज पाकिस्तान न सिर्फ जनूबी एशिया बल्कि खित्ते में भी इस्तेहकाम की अलामत और ज़मानत बन चुका है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम भारत या उसकी प्रॉक्सिस की जानिब से किसी भी मुमकिन चैलेंज का मुकाबला करने के लिए हम वक्त तैयार हैं। हमारे फौजी जवान हमारे दफा और खुद मुख्तारी के ज़ामिन हैं और हमारी आवाम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।